Hello, dear students. Welcome back to day 30 of our daily 5 study question series. आज हम हेरिडिटी चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के 5 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज why is why an offspring of human being is not a true copy of his parents in sexual reproduction. बच्चा लोग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिमिलर कॉपी ऑफ डीएनए इज जनरेटेड एंड द प्रोसेस हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं डीएनए कॉपिंग. डीएनए कॉपिंग इज not perfectly accurate and the resultant errors are a source of variation in population of organism. That is why an offspring of human being is not a true copy of his parents. और दूसरा रीजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो दोनों के करेक्टर क्या हो जाते हैं बेटा हमारी बॉडी में नेक्स्ट जनरेशन में शो हो जाते हैं. बी पार्ट why performing experiment on inheritance in plants, what is the difference between F1 and F2 generation? F1 generation is the generation of hybrids produced from a cross between the genetically different individual called parents. F2 generation is the generation produced by the offspring of F1 generation, that is first generation as parents. C part, why do we say that variations are useful for the survival of a species over time? Variations refers to the difference in the characters or traits among the individual of a species. Variations is beneficial to the species because it enables the organism to adapt themselves in changing environment, and it forms the basis of heredity, and it forms the raw material for evolution and development of new species. इसी का और पार्ट है बेटा स्टडी मेंडल्स क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विद ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. बेटा जी न्यू कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं हमारे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं वो होते हैं राउंड एंड येलो. राउंड के साथ होता है हमारा येलो और रिंकल के साथ होता है हमारा ग्रीन. तो जो हमारे न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं बेटा जी राउंड के साथ ग्रीन जाता है यानी राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल के साथ येलो आ जाता है. If two or more traits are involved, their genes assort independently, irrespective of combinations present in the parents. So, new combinations of genes appear in the offspring, leading to the new traits. Question number 2. Mendel observed a number of contrasting visible characters controlled in a pea plant in a field. He concluded many experiments to arrive at the law of inheritance. If 1600 plants were obtained in F2 progeny, why the number of plants having traits tall and round seeds, short and wrinkled seeds? Write the conclusion of the above experiment. In a dihybrid cross, Mendel considered two traits simultaneously for the inheritance pattern. दो करेक्टर एक साथ लिए थे तो बेटा सेकंड जनरेशन में F2 जनरेशन में जो हमारा रेशियो था वो क्या था बेटा फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1. तो उसमें से हमारे जो है कैलकुलेशन दी है बेटा टोटल प्लांट्स हमारे हैं 1600. तो हमारे जो है टॉल एंड रिंकल कितने थे बेटा टॉल प्लांट एंड राउंड सीड कितने हो गए 9/16 into 1600 that is 900. एंड टॉल प्लांट्स विद रिंकल सीड 3 थे तो ये हो गए हमारे 3/16 into 1600 that is 300. एंड शॉर्ट प्लांट्स विद राउंड सीड्स अगेन 3/16 into 1600 300. एंड शॉर्ट प्लांट्स विद रिंकल सीड 1 यानी हमारे कितने हो गए 1/16 into 1600 यानी 100 प्लांट्स. तो हमें पूछे हैं टॉल एंड राउंड 900 हो गए शॉर्ट एंड रिंकल 300 हो गए. तो कंक्लूजन क्या निकला डाइहाइब्रिड क्रॉस done by Gregor John Mendel to develop his law of independent assortment. It can be concluded when two pairs of traits are combined in a hybrid, one pair of characters segregate independent of the other pair of character. That is, tallness trait was seen along with wrinkle seed. This experiment also explain law of dominance. Only dominant traits are seen in F1 generation. For example, all plants produce but tall plant with round seeds. Now, question number 3. A scientist crossed the F1 generation of pure breeding parents for round and wrinkled seed. Single pair of character लिया है बेटा
and founded the number of offspring produced in 12,420. He write the correct ratio of round seed and wrinkled seed. जैसे हमने मान लिया है as roundness of the seed is a dominant trait and wrinkled is recessive trait. तो बेटा क्या हो जाएगा, हमारा जो है राउंड सीड्स डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होता है हमारा F2 जनरेशन में रेशियो 3:1, यानी हमारे जो है 9315 प्लांट्स हो जाएंगे राउंड एंड 3105 प्लांट्स हो जाएंगे रिंकल. ठीक है. नाउ बी पार्ट, विच कंडीशन इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर F2 जनरेशन. बच्चा F2 जनरेशन में F1 प्लांट्स को ही हम क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड करते हैं. C. Mendel obtained 4 different combinations of shape and color. Write their phenotypic ratio with their particular combination of shape and color. हमने जो लिया है इसमें राउंड एंड येलो, यानी कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर कौन से हो गए, राउंड के साथ हमने रिंकल लिया है और येलो के साथ हमने ग्रीन लिया है. तो हमारा जो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:1. तो राउंड एंड येलो आएंगे 9, रिंकल्ड एंड येलो आएंगे 3, राउंड एंड ग्रीन आएंगे 3, रिंकल्ड एंड ग्रीन आएंगे 1. इसी का और है, who is known as father of genetics and why. Gregor John Mendel is known as father of genetics. He discovered the fundamental laws of inheritance through his work on pea plant. He also recognized the mathematical patterns of inheritance from generation to generation, या first generation to next generation. Question number 4. Pooja has green eyes while his parents and brother have black eyes. Parents की भी और भाई की भी eyes कैसी हैं, black है, पूजा की green है. तो इट मीन्स कि पूजा की आईज की, चलिए आगे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. पूजा's husband Ravi has black eyes while his mother has green and father has black eyes. On the basis of above given information, is the green color is dominant and recessive. Justify your answer. बच्चा देखिए बेटा, पूजा की आईज ग्रीन है, सिर्फ पूजा की आईज ग्रीन है, उसके घर में पेरेंट्स की भी और उसके ब्रदर की, दोनों की आईज कैसी है, तीनों की आईज, मतलब दोनों पेरेंट्स की और ब्रदर की आईज कैसी है, ब्लैक है. इट मींस कि ग्रीन कलर पेरेंट्स के अंदर क्या है बेटा, छुपा हुआ है, यानी ग्रीन कलर जो है उसके अंदर है. तो ग्रीन कलर कैसा हो गया बेटा, रिसेसिव हो गया. जो अंदर, यानी पेरेंट्स में कौन सा शो हो रहा है कलर, ब्लैक कलर शो हो रहा है, ग्रीन शो नहीं हो रहा. यानी दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, रिसेसिव करेक्टर उनके अंदर है, यानी जो हमारा ग्रीन कलर है उसका जीन उनके अंदर है बट शो नहीं हो रहा. इट मींस कि जो हमारा ग्रीन कलर है वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, क्योंकि ये सिर्फ किस कंडीशन में शो हो रहा है, होमोजाइगस कंडीशन में, जबकि पूजा की दोनों जीन्स क्या है, सेम है, ग्रीन कलर के हैं. ठीक है. अब सेकंड है, व्हाट इज द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ऑफ पूजाज ब्रदर आई कलर. पूजा के भाई का आई कलर क्या हो सकता है. तो बेटा जी आप ये देखिए कि मदर का क्या है, मदर का है कैपिटल बी और स्मॉल बी, और फादर का भी क्या है बेटा, कैपिटल बी और स्मॉल बी. राइट. अब भाई का है भाई का भी ब्लैक है, तो भाई के कॉम्बिनेशंस कौन कौन से बन सकते हैं, कैपिटल बी और कैपिटल बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये दोनों कॉम्बिनेशन भाई के पॉसिबल है. C part, what is the probability that offspring of Pooja and Ravi's will have green eyes. पहले हमें रवि की देखनी होगी बेटा. रवि की आईज तो ब्लैक है, बट मदर की आईज उसकी ग्रीन है और फादर की ब्लैक है. मदर की ग्रीन है, फादर की ब्लैक है, और रवि की भी ब्लैक है. तो बेटा जी रवि क्या है, हमें क्रॉस भी बना के दिखाना है और बताना भी है. पूजा ब्रदर आई कलर, ये हो गया हमारा, चाहिए हो गया सी पार्ट हमारा ना. तो पूजा जो ब्रदर है हमारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूजा एंड रवि विल हैव ग्रीन आईज. पूजा की भी ग्रीन है और रवि की भी. व्हाट इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजा एंड रवि विल हैव ग्रीन आईज. अच्छा, ऑफस्प्रिंग की ग्रीन होनी चाहिए आईज. अब ये देखिए पूजा का तो हमारा डिसाइडेड है, पूजा की तो हमारी कैपिटल स्मॉल बी और स्मॉल बी है ही है. अब बच्चे में यदि हमारा जो रवि है, ये जो रवि की ब्लैक आईज है, कैपिटल बी होंगी, तो बेटा जी बच्चों में ग्रीन कलर नहीं आएगा. राइट. इट मींस कि पूजा का जो हस्बैंड है उसका जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल बी स्मॉल बी. तो हमारा हमने इसका जो है पुनेट स्क्वायर बना लिया, तो ये आ गया हमारा आंसर. यानी 50% चांसेस है
यानी 2 बच्चों के जो है हमारे चांसेस है ग्रीन के, 2 हमारे चांसेस क्या है ब्लैक की, यानी 50% बच्चों के चांसेस है, ऑफस्प्रिंग के चांसेस है कि ग्रीन कलर आ जाए। क्लियर? नाउ 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ पूजाज ब्रदर, पूजा का जो ब्रदर है जिसकी आईज कैसी है, ब्लैक है, उसके 50% बच्चों का जो कलर है कैसा है, ग्रीन है। हाउ दिस इज पॉसिबल? बेटा यदि हम मानते हैं कि वाइफ का भी कलर ग्रीन है, तो भाई का जो है क्या होना चाहिए, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो चाहिए। होमोजाइगस कंडीशन होगी तो नहीं होगा। और इसी तरह से वाइफ का तो हमें कुछ पॉसिबिलिटीज दी नहीं है, सिर्फ भाई जो है ब्रदर की दी है। इट मींस कि जो वाइफ है वो कैसी है, हमारी ग्रीन कलर की आइज की है, और ब्रदर कैसा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो पॉसिबल है कि 50% बच्चों की आइज कैसी होंगी, ग्रीन कलर की होगी। राइट? नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन given below is the experiment carried out by Mendel to study the inheritance of true traits in garden pea. Fill the boxes with appropriate answer. ये boxes fill करने हैं with answer. Secondly, why did Mendel carry out an experiment with two traits? Third, why what were his findings with respect to inheritance of traits in F1 and F2 generation? First of all, fill करते हैं हम कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो बेटा जी इसमें जो गैमेट्स बनेंगे कैसे बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल कैपिटल वाई के गैमेट्स बनेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो फर्स्ट जनरेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमने दोनों को सेल्फ क्रॉस करवा दिया, तो सेकेंड जनरेशन में हमारे देखिए 9:3:3:1 का रेशियो आ रहा है, 300 108 101 32, अप्रोक्स बेटा हमारा रेशियो आएगा 9:3:3:1। ठीक है। एंड मेंडल ने टू ट्रेट एक साथ क्यों करवाए थे, टू स्टडी द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस को बताने के लिए, फॉर टू ट्रेट्स इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन। फाइंडिंग्स क्या थी, what were the findings with respect to find inheritance of traits in F1 and F2 generation? F1 progeny exhibits only the dominant traits. F1 generation में सिर्फ dominant traits show होती है, but F2 generation exhibits parental traits along with new mixture या recombination भी कह सकते हैं हम। The dominant trait also get expressed, यानी सारी जो traits है वो express हो रही है। तो बेटा जी ग्रेट जॉब, आज हमने बहुत काम कर लिया, मींस कि हमने जो है डे 30 भी कंप्लीट कर दिया। आज के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज करना मत भूलना। कल मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।